Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am again with you with our 7th lecture today. I hope that you all are fine and enjoying your online session very well. In the last lecture, you people have done the exercise of the lesson The Great Train Journey. Today we are going to do our next lesson, that is a poem, The Echoing Green. We will do its reading and explanation. Along with that, we will do its question answers. Also, we will have an introduction to the reader, that is Alice Adventures in Wonderland. Dear students, before we start our reading, let's have a short video clip of the poem. Let's enjoy the singing of the poem. The sun does arise and make happy the skies. The merry bells ring to welcome the spring. The skylark and thrush, the birds of the bush, sing louder around to the bells' cheerful sound, while our sport shall be seen on the echoing green. Old John with white hair does laugh away care, sitting under the oak among the old folk. They laugh at our play, and soon they all say, such were the joys when we all girls and boys in our youth time were seen on the echoing green. To the little ones weary, no more can be merry. The sun does descend, and our sports have an end. Round the laps of their mothers, many sisters and brothers, like birds in their nest, are ready for rest, and sport no more seen on the darkening green. Dear students, I hope that you people have enjoyed listening to the poem. Here, the title of the poem is The Echoing Green. Let me tell you about the title first. Echoing का वर्ड आपका echo से निकला है, जिसका मतलब है गूंज. So the word echoing means गूंजता हुआ. Green means कोई भी greenery, you can say some green park. The whole title means The Echoing Green means गूंजता हुआ सब्ज़ाज़ार. The poem is written by the poet William Blake. Now we will move to the main theme of the poem. You can say main message of the poem. The Echoing Green is, the poem talks about merry sounds and images which accompany the children playing outdoors. ये पोइम हमें उन आवाज़ों और तस्वीरों के बारे में बताती है जो तब महसूस की जा सकती हैं जब बच्चे बाहर खेल रहे होते हैं. Then an old man happily remembers when he enjoyed playing with his friends during his own childhood. फिर एक बूढ़ा आदमी अपना बचपन याद करता है जब वो अपने बचपन में खेला करता था अपने दोस्तों के साथ. The last stanza depicts the little ones being weary. और आखिरी स्टेंजा हमें ये बताता है कि छोटे बच्चे थक चुके हैं. When the sun has descended, जब सूरज गुरूब होने लगता है, and going to their mother, और वो अपनी मदर्स के पास चले जाते हैं, to rest after playing many games, और वो बहुत सारी गेम्स खेल के जब थक जाते हैं, then they move to their mothers. This was the main theme of the poem. You can say it was its message. Now we will start its reading. You must be having your books and pencils with you so that you may write meanings with me. The first stanza is, the sun does arise
सूरज निकलता है, एंड मेक हैप्पी द स्काइज, और वो आसमान को खुश कर देता है। द मैरी बेल्स रिंग, खुशियों वाली घंटियाँ, या आप कह सकते हैं मसरूर घंटियाँ बजती हैं। टू वेलकम द स्प्रिंग, और वो किस चीज़ को वेलकम करती हैं? बहार को। द स्काई लार्क एंड थ्रश, दीज आर द बर्ड्स ऑफ द बुश, वो बहार को वेलकम करती हैं। और जो दो परिंदे हैं, स्काई लार्क एंड थ्रश, दीज आर द बर्ड्स ऑफ द बुश, सिंग लाउडर अराउंड, वो ऊंची आवाज़ में आस पास गाते हैं। टू द बेल्स चीयरफुल साउंड, और आवाज़ हमें कैसी आती हैं? खुशकुन आवाज़ें हमें घंटियों की सुनाई देती हैं। वाइल आर स्पोर्ट्स शैल बी सीन ऑन द इकोइंग ग्रीन, और हमारे खेल देखे जा सकते हैं उस गूंजते हुए सब्ज़ाज़ार पे। दिस वॉज ऑल योर फर्स्ट स्टैंजा। द पिक्चर ऑल्सो शोज़ द ग्रीनरी दैट इज़ बिहाइंड. Dear students, here are words meanings written for you. You have to write these words meaning on your books with pencils. Now move to our next stanza. Old John with white hair does laugh away care. बूढ़ा जॉन, जिसके किस तरह के बाल हैं? सफ़ेद बाल हैं, वो बेपरवाह होकर हंसता है या हंसकर अपनी परेशानियों को दूर करता है। सिटिंग अंडर द ओक, और वो एक दरख्त के नीचे बैठा हुआ है। अमंग द ओल्ड फोक, बूढ़े लोगों के दरमियान। दे लाफ एट आवर प्ले, और वो हमारे खेल पर हंसते हैं। एंड सून दे ऑल से, और फिर वो सब क्या कहते हैं? सच वर द जॉयज़, ऐसी ही खुशियाँ और मज़े थे। व्हेन वी ऑल बॉयज़ एंड गर्ल्स, जब हम लड़के यानी जब हम बच्चे थे। आवर यूथ टाइम वर सीन, और यही खेल हमारे बचपन में नज़र आते थे। ऑन द इकोइंग ग्रीन, उस गूंजते हुए सब्ज़ाज़ार पे। दिस वॉज योर सेकेंड स्टैंजा. द पिक्चर्स ऑल्सो डिपिक्ट्स द मेन थीम ऑफ द सेकेंड स्टैंजा. Here are its words meaning. You have to write these words meaning also. Now come to the third stanza, that is, till the little ones weary, जब छोटे बच्चे थक जाते हैं। No more can be merry, तो कोई भी खुशी हमें नज़र नहीं आती। The sun does descend, सूरज डूब जाता है। एंड आर स्पोर्ट्स हैव एन एंड, और हमारे खेल ख़त्म हो जाते हैं। राउंड द लैप्स ऑफ देयर मदर्स, और वो माँओं की गोद में चले जाते हैं। मैनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बहुत सारे भाई और बहन। लाइक बर्ड्स इन देयर नेस्ट्स, अपने परिंदे अपने घोंसलों में चले जाते हैं। आर रेडी फॉर रेस्ट, और वो घोंसलों में जाके दे टेक रेस्ट। एंड स्पोर्ट नो मोर सीन, और तब वहाँ पर उस लैंड में कोई भी खेल नज़र नहीं आता। ऑन द डार्कनिंग ग्रीन, उस तारीक अंधेरे वाले सब्ज़ाज़ार पे, यानी जो पहले रोशन था वो अब कैसा हो चुका है? तारीक हो चुका है। बिकॉज द सन हैज़ डिसेंडेड. हेयर आर इट्स वर्ड्स मीनिंग्स. डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज ऑल योर पोइम. I hope that you people have understood this poem. Now move to its exercise. From exercise we are going to do only question answers today. First question is, which time of day is it at the beginning of the poem? पोइम के शुरू में कौन सा वक्त बताया जा रहा है? You people have read the poem. First line of the poem was द सन डज अराइज. इसी से हमें पता चलता है कि पोइम के शुरू में सुबह का वक्त है. सो इट्स आंसर इज़ एट द बिगनिंग ऑफ द पोइम द सन इज़ राइजिंग, सो इट इज़ अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी सुबह का वक्त है, बहुत सुबह का वक्त है, सूरज निकल रहा है. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, विच वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा क्रिएट अ चीयरफुल मूड? कौन से वर्ड्स पहले स्टैंजा में से
चीयरफुल मीन्स हैप्पी मूड क्रिएट करते हैं। वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट स्टैंजा विच क्रिएट अ चीयरफुल मूड आर, वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? हैप्पी, मैरी, वेलकम, सिंग एंड चीयरफुल। थर्ड क्वेश्चन इज इन द सेकेंड स्टैंजा व्हाट आर द ओल्डर पीपल डूइंग, यानी सेकेंड स्टैंजा में बूढ़े लोग क्या कर रहे हैं, एंड व्हाट डज इट मेक देम रिमेंबर, और इससे उनको क्या याद आता है। इन द सेकेंड स्टैंजा द ओल्डर पीपल आर लाफिंग एट द चिल्ड्रन प्लेइंग। सेकेंड स्टैंजा में वी हैव रेड दैट दे आर लाफिंग, द ओल्डर पीपल आर लाफिंग एट द चिल्ड्रन प्लेइंग, कि वो बच्चों पे हंस रहे हैं, खेलते हुए बच्चों को देख के वो हंस रहे हैं। इट मेक्स देम रिमेंबर व्हेन दे यूज टू प्ले, और ये उनको वो चीज़ याद दिलाता है कि जब वो खेला करते थे हैप्पीली ऑन द ग्रीन, खुशी से सब्ज़ाज़ार पे या ग्रीन पार्क में वो खेला करते थे। व्हेन दे वर यंग, जब वो छोटे थे। The next question is in the final stanza which time of day is it? Final stanza में कौन सा day है? In the final stanza the sun is going down. Final stanza में ये हमें पता चलता है कि सूरज डूब रहा है, सूरज गुरूब हो रहा है, so it is evening, तो वो शाम का वक्त है। The next question is इन द फाइनल स्टैंजा व्हाट हैपन्स टू द चिल्ड्रन। फाइनल स्टैंजा में बच्चों के साथ क्या होता है? इन द फाइनल स्टैंजा द चिल्ड्रन आर टायर्ड, बच्चे थक चुके हैं, एंड रेडी फॉर रेस्ट, और वो आराम करने के लिए तैयार हैं। सो दे सिट विद देयर मदर्स, सो वो अपनी मदर्स के पास चले जाते हैं इंस्टेड ऑफ प्लेइंग, खेलने की बजाय। जी नेक्स्ट क्वेश्चन इज in the final stanza the poet creates an interesting image by comparing the mother and her children to a type of animal, यानी वो कहता है कि फाइनल स्टैंजा में पोइट एक इंटरेस्टिंग इमेज क्रिएट करता है मदर और बच्चों को एक एनिमल के साथ वो मिलाता है। वट एनिमल्स आर दे कंपेयर टू, वो किन एनिमल्स के साथ कंपेयर करता है। देयर आर 3 क्वेश्चंस इन दिस सिंगल क्वेश्चन। वट आर दे डूइंग, और वो क्या कर रहे हैं। वट इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ यूजिंग दिस कंपेरिजन, और इस कंपेरिजन को यूज़ करने का क्या इफ़ेक्ट है। द आंसर इज़ इन द फाइनल स्टैंजा द पोइट कंपेयर्स द मदर एंड हर चिल्ड्रन टू बर्ड्स इन अ नेस्ट, यानी किस एनिमल से मिलाता है। फर्स्ट क्वेश्चन यही पूछा गया था, तो वो मिलाता है बर्ड्स इन अ नेस्ट के साथ। द चिल्ड्रन सिट विद देयर मदर्स, और बच्चे किसके साथ बैठे हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। दे आर सिटिंग विद देयर मदर्स। और लास्ट में पूछा गया था कि इस कंपैरिजन का इफ़ेक्ट क्या है। द आंसर इज़ द इफ़ेक्ट ऑफ द कंपैरिजन इज़ दैट वी कैन पिक्चर द चिल्ड्रन विद देयर मदर्स गेटिंग कम्फर्ट एंड वार्मथ एंड फीलिंग सेफ। इस कंपैरिजन का इफ़ेक्ट ये है कि हम बता सकते हैं कि बच्चे अपनी मदर्स के साथ बैठे हुए हैं और वो सुकून हासिल कर रहे हैं और अपने आप को बिल्कुल सेफ़ एंड साउंड फील कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ मेक अ लिस्ट ऑफ एनिमल्स मेंशन्ड इन द पोइम। पोइम में 2 एनिमल्स का जिक्र किया गया था, एंड आई होप दैट यू पीपल हैव रेड दैट। द आंसर इज़ बर्ड्स आर मेंशन्ड इन द पोइम। वो कौन से बर्ड्स हैं। द स्काईलार्क एंड थ्रश आर नेम्ड। दीज आर एक्चुअली 2 birds and their names are skylark and thrush. Next question is make a list of sounds mentioned in the poem. Which stanza doesn't have any sound mentioned in it? वो कौन कौन सी साउंड्स हैं जो पोइम में मेंशन की गई हैं, ये हमने बताना है। अ लिस्ट ऑफ साउंड्स मेंशन इन द पोइम, वो ये साउंड्स हमें पोइम में मेंशन की गई हैं। बेल्स रिंगिंग, घंटियों का बजना, बर्ड सॉन्ग, परिंदों का गाना, लाफ्टर, हंसी की आवाज़, वॉइसेस ऑफ द ओल्ड फोक, और जो बूढ़े लोगों की आवाज़ें हैं, द इकोइंग ग्रीन, और गूंजता हुआ सब्ज़ाज़ार। नो साउंड्स आर मैंशनड इन द फाइनल स्टैंजा, और आखिरी स्टैंजा में जबकि सूरज के गुरूब हो जाने की बात हो रही है तो उसमें कोई भी साउंड मेंशन नहीं की गई।
Dear students, this was all your question answers. Now we are going to have an introduction to our reader. Your reader is Alice Adventures in Wonderland. I have shown this picture here so that if you haven't bought this book yet, you people have to get it as early as possible. And its introduction is, ये स्टोरी एक गर्ल के बारे में है जो कि बहुत एडवेंचर्स करती है. द बुक प्रेजेंट्स द एडवेंचर्स ऑफ अ लिटिल गर्ल. ये बुक हमें एक छोटी सी लड़की के एडवेंचर्स के बारे में बताती है. हु हैज़ फॉलन डाउन अ रैबिट होल, जो किस में गिर जाती है, एक रैबिट के हॉल में. टू अ फैंटेसी वर्ल्ड, और एक वो ऐसी इमेजिनरी दुनिया में चली जाती है, पॉपुलेटेड बाय ऑल सॉर्ट्स ऑफ पेक्यूलियर क्रिएचर्स, जिसमें उसको बहुत अजीब किस्म के क्रिएचर्स मिलते हैं. दिस वॉज ऑल हिज इमेजिनेशन. वो एक इमेजिनरी वर्ल्ड में चली जाती है. व्हेन वी विल रीड दिस बुक चैप्टर बाय चैप्टर, you will enjoy it surely. Now you have to get this book and read the introduction first. इसमें आपको कुछ कैरेक्टर्स भी शुरू में दिए गए हैं, वो भी आपने अच्छी तरह से रीड आउट कर लेने हैं. देन वी विल रीड इट फर्दर. Now move to our homework. Dear students, you have to read the poem again carefully. Learn and write question answers. You have to learn and write question answers on your notebooks in a very neat handwriting. Read chapter number 1 from your reader. मैंने आपको बताया कि रीडर आपने ले लेना है. If you haven't bought it yet, रीडर से आपने शुरू में इंट्रोडक्शन भी पढ़ लेना है, अबाउट द ऑथर भी पढ़ लेना है. द रीडर इज़ रिटन बाय लिविस कैरल. वो आपने अबाउट द राइटर भी पढ़ लेना है. शुरू में कैरेक्टर्स हैं, उनको भी आपने रीड कर लेना है. प्लस आपने चैप्टर नंबर 1 आपने अपने रीडर में से अच्छी तरह पढ़ लेना है. एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू अ comprehension passage from this chapter. This was all about your homework. Till our next lecture, take good care of yourself. Have an enjoyable Eid. Thank you very much. Allah Hafiz.